Hi friends, today we are starting with the unit 1 of Nazism class 9. Let's see. Basically I am giving an overview of this chapter, the birth of this unit, Birth of Weimar Republic. This chapter will tell us that how the Germany abolished its monarchy and became a parliamentary form of democracy, and how the World War I impacted Germany, and what were the destructions or what were the good effects on Germany, and how did Germany overcome its economical destruction after the war, and how did democracy again collapsed and dictatorship came to Germany. So Germany, a powerful empire in early years of its 20th century, fought World War. तो हमें पता चल गया कि वर्ल्ड वॉर 1914 और 1918 के बीच में हुई थी, जिसे जर्मनी ने भी मतलब उसमें हिस्सा लिया था. किसके अगेंस्ट लिया था? तो एक्सेस पावर था जर्मनी, और इसने अलाइड पावर के अगेंस्ट लिया था. अलाइड पावर में थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. Let me erase this. Yeah. All joined the war enthusiastically, hoping to gain a quick victory. तो जब लोगों ने वॉर ज्वाइन की तो उन्हें लगा कि चलो मतलब बहुत जल्दी वॉर खत्म हो जाएगी और विक्ट्री मिल जाएगी. लेकिन जब वॉर शुरू हुई, then they realized that this war would stretch out. Little did they realize that the war would stretch on and eventually draining all the Europe, all its resources. So basically, when countries fight, their military resources are depleted, their economical resources are depleted. So the Europe's resources due to the World War I depleted. Germany made its initial gains, means Germany was initially winning the war by occupying France and Belgium. However, when America came in the Allied power, then Germany lost the war. The defeat of Imperial Germany and abdication to the emperor gave an opportunity to parliamentary party to recast German polity. So when Germany lost its war, the people thought all that now monarch would not be the king. Now the parliamentary party would come and establish a new German politics. A national assembly, yes, here it is. A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. What does this mean? This means like a national assembly. And also in French Revolution we also learned this word. A national assembly means group of people came and met at Weimar. Weimar is a place established a democratic constitution with federal structure. It is very similar to the French Revolution. In French Revolution you all have seen that they gathered in a tennis court, declared themselves as National Assembly, and they drafted the constitution. Here also the National Assembly met at Weimar, established a democratic constitution with a federal structure. Federal means it gave some of its opportunities, we can say कुछ उनको ज़्यादा privileges दी गई थी फेडरल स्टेट्स को. Deputies were now elected to the German Parliament or the Reichstag. तो जर्मन के अब जो डिप्यूटीज थे वो कहाँ इलेक्ट हो रहे थे? जर्मन के पार्लियामेंट में इलेक्ट हो रहे थे. क्यों हो रहे थे? क्योंकि अब एक वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने जा रही थी और पार्लियामेंट का नाम था रीस्टैग. ऑन बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट. इसका मतलब इन लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को मान लिया था कि हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है अब सबको इक्वल वोट्स होंगे, वुमेन्स को भी. This republic, however, was not received well by its own people. Now we see कि अब जब वीमर ने इतने अच्छे काम किए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मान ली, सब कर लिया, तो क्यों जर्मनी के लोग इन्हें एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे? क्योंकि इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर I की डिफीट मान ली थी. इन लोगों ने कहा था कि हाँ, जर्मनी डिफीटेड है, और वो भी इसलिए क्योंकि ऑल द रिसोर्सेज वर नाउ ड्रेन्ड. अगर ये लोग नहीं मानते तो इवेंचुअली क्या होता, जर्मनी पे ऑक्युपाई तो लोग करते ही, और हो सकता है जो इन्होंने अपने दम पे डेमोक्रेसी बनाई, हो सकता है ये लोग स्लेव हो जाते किसी के भी. तो इसलिए इन लोगों पे एक तो ये इनको फोर्स करके जर्मनी की डिफीट एक्सेप्ट करवाई गई,
इसलिए लोगों ने इन्हें बोला था कि डेमोक्रेसी की वजह से, वीमर रिपब्लिक की वजह से जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गई। और दूसरा हमारे पास इन लोगों को क्यों नहीं पसंद किया गया, क्योंकि एक पीस ट्रीटी, जैसे हमने कहा था जब भी एक वॉर शुरू होती है और एंड होती है तो हारने वाली जो देश होता है उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन या उस पे कोई पीस ट्रीटी साइन कराते हैं। जैसे हमारे इंडिया के साथ भी कई देशों की पीस ट्रीटी साइन हो रखी है, उसी तरह ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस उस ट्रीटी का नाम था, जो अलाइड ने जो था वो एक्सेस पावर से साइन करवाई थी, क्योंकि बहुत ह्यूमिलेटिंग थी एक्सेस पावर के लिए। तो जर्मनी लॉस्ट इट। अब इसकी इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए जब वीमर रिपब्लिक ने साइन कर दिया, तो साइन करने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हुए, इट लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, मतलब जो भी उनकी दूर दराज की कॉलोनीज थी, जो सी पोर्ट एरियाज थे, वो हार गए, उन्हें वो एलाइड पावर को देनी पड़ी। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो भी एलाइड पावर को चली गई। 13% ऑफ टेरिटरी जो आउटर टेरिटरीज थी वो भी चली गई। 75% ऑफ आयरन। व्हाट डज दिस मीन? अब रिसोर्सेज तो डिप्लीट हुए ही है वॉर में, तो अब जितनी भी जीतने वाली पार्टी थी उन्होंने कहा कि जर्मनी की वजह से वॉर स्टार्ट हुआ है, इसलिए हर कंट्री का जो जो नुकसान हुआ है वो जर्मनी को पे बैक करना पड़ेगा। तो जर्मनी ने इस लोन को पे बैक, इस गिल्ट को, बेसिकली वॉर गिल्ट को गोल्ड से पे बैक किया था, आयरन से पे बैक किया था। और फ्रांस और पोलैंड ने इनकी कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज को अपनी कंट्री में मिला लिया था एज अ वॉर कंपनसेशन। तो द अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, इन्होंने डीमिलिटराइज कर दिया था जर्मनी को। द वॉर गिल्ट हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर। तो जैसे मैंने कहा कि इनको मतलब एक बोल दिया था कि नहीं, आप लोगों की वजह से वॉर शुरू हुई है और आप ही लोग हार गए हो, तो जितने भी देश का जो भी नुकसान हुआ है अब वो आप ही लोग भरोगे। The Allied armies also occupied resources rich in like Rhineland. What is Rhineland? Rhineland एक रिसोर्सेज एरिया था जर्मनी का, जहाँ पे आयरन है, वो एक कहते थे इंडस्ट्रियल अच्छा एरिया था, जिसको फ्रांस ने अपने में मिला लिया एज अ वॉर कंपनसेशन। सो ये सब एक बहुत नेशनल ह्यूमिलेशन था जर्मनी के लिए कि एक तो वॉर भी हार गए, ऊपर से जर्मनी की ट्रीटी भी साइन करवा ली, सारे अच्छे जो पॉपुलेशन, टेरिटरीज, आयरन, गोल्ड सब ले लिया। तो इट वॉज अ डिसग्रेसफुल ट्रीटी फॉर जर्मनी। नाउ व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ वॉर? तो इफेक्ट ऑफ वॉर में हम लोग समझते हैं फिजिकल लॉस बहुत होता है, जैसे कि हमारे कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ क्या बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, उसके बाद हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका एक इकोनॉमिकल और फिजिकल के अलावा एक इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है कंट्री पे। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ह्यूमिलेशन सही, क्योंकि उनके पास से सब कुछ चला गया। The war had a devastating impact on the entire continent, both physically and financially, psychologically, financially, physically, all types. From continent of a creditor, Europe became a continent to debtor. Debtor means जो रकम नहीं चुका पाता, जो कर्ज में होता है। तो पहले यूरोप को एक बहुत रिच कॉन्टिनेंट माना जाता था, लेकिन इस वॉर के पास जो लोगों को उधार देता था, उस कॉन्टिनेंट को अब लोगों से उधार लेना पड़ा। इस लाइन का ये मतलब है। अनफॉर्चुनेटली इन्फेंट मतलब वीमर, तो अभी मतलब वॉर खत्म हुई और वीमर गवर्नमेंट बनी, इट वॉज, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा टेन्योर नहीं था इतना सबको संभालना, लेकिन वीमर को ही सारी वॉर गिल्ट पे करनी पड़ी। The Republic carried the burden of war guilt and nation humiliation and was financially crippled by forced to pay the compensation. Now एक नई गवर्नमेंट बनी है, आते आते उस गवर्नमेंट को वॉर गिल्ट मिल गया, उसके अपने लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसने ट्रीटी साइन कर दी, उसको अपने रिसोर्सेज दूसरी बाहर की कंट्री उसको देने पड़े क्योंकि वो लोग वॉर हार गए। तो कितनी सारी अनस्टेबिलिटी थी यहाँ पे, एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड, मतलब उनके पास इकोनॉमिकली अब वो सोर्स बचा नहीं था जिससे वो अपने आप को पावर में रख पाए। तो अब ऐसे भी कुछ लोग थे जो वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उनका नाम था, वो बेसिकली थे सोशलिस्ट, कैथलिक्स
एंड डेमोक्रेट्स, ये 3 ऐसे ग्रुप थे जो वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाकी जनता तो बिल्कुल नहीं करती थी। ऑब्वियसली अगर हम 100% में से देखें तो सोचा 10% ही कैथोलिक्स हो, 10% सोशलिस्ट हो और 10% डेमोक्रेट्स हो, तो 30% लोग इन्हें पसंद करते थे, पर 70% लोग तो इन्हें नहीं पसंद करते थे। इसलिए उन 70% लोगों ने इनको भी दोष देना शुरू कर दिया कि तुम लोगों की वजह से हमारी जर्मनी को इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा है, और इन्हें वो लोग नाम देते थे नवंबर क्रिमिनल्स का। नवंबर क्रिमिनल्स ही क्यों बोलते थे इनको? क्योंकि जो ट्रीटी साइन हुई थी वो नवंबर में ही हुई थी, और नवंबर के बाद ही जर्मनी का जितना डेविस्टेशन होना था हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी। अब हम बोलते हैं कि एक वर्ल्ड वॉर मतलब एक जब वॉर एंड होती है ना, तो उसके साथ एक नया एरा शुरू होता है। जस्ट अ मिनट। उसके साथ एक नया एरा शुरू होता है। उस एरा में क्या होता है, या तो वो एरा अच्छा हो सकता है उस कंट्री के लिए जो जीता है, और वो एरा बेकार हो सकता है उस कंट्री के लिए जो हारा है। तो यहाँ से जर्मनी का एक बैड एरा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो कुछ डेविस्टेशन शुरू हो गई थी। उनकी सोसाइटी में अब मिलिट्री को बहुत सपोर्ट किया जा रहा था, सोल्जर्स को सिविलियन से ज्यादा दर्जा दिया गया था। मीडिया ने ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया था। ट्रेंच लाइफ मतलब जो सोल्जर्स की लाइफ होती है, कैसे वो बॉर्डर्स पे रहते हैं, मैन को एग्रेसिव बनाने का प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था। मीडिया ने मेन जो मीडिया का कंसर्न था वो ये था कि कैसे हम आज की जो जनता है, आज का जो यूथ है, उसको बताए कि सोल्जर की लाइफ कितनी अच्छी होती है। लेकिन ये वहाँ का सच नहीं था। सोल्जर्स की लाइफ जो थी वो मिजरेबल थी। उन्हें बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रहनी पड़ती थी। जो बंकर था वो वेल एस्टैब्लिश्ड बंकर नहीं था। रैट फीडिंग कॉर्पेस मतलब ऐसे चूहे या फिर ऐसे मतलब रॉडेंट्स वहाँ पे घूमते थे जो इंसान को खा के जिंदा रहते थे। मतलब एक बहुत ही नॉट अ लिविंग प्लेस में वो रह रहे थे। तो डेमोक्रेसी वो तो ये सब दिखाया था। मीडिया ने एक फॉल्स ओपिनियन लोगों के अंदर क्रिएट की थी कि अगर वॉर होता है तो आप सबको सोल्जर्स बनना है, क्योंकि एक सोल्जर की लाइफ बहुत ही रेपुटेड लाइफ होती है, अच्छी लाइफ होती है। यहाँ पे हमने देखा एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड द सेंट्रल स्टेज। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा यही होता है कि आपको सोल्जर बनने, आपको वॉर्स में जाने के लिए आपको उत्साहित किया जाए। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटीज ऑफ इंटरवॉर यूरोप। अब डेमोक्रेसी तो अभी अभी आई थी, इससे पहले मोनार्क थी। अब यहाँ पे डिक्टेटरशिप की मांग होनी शुरू हो गई थी जर्मनी में, क्योंकि उन्होंने देखा कि ना डेमोक्रेसी इकोनॉमिकल क्राइसिस को हटा पा रही है, ना उसने वॉर जीती। तो अब उन्हें डेमोक्रेसी से एक नई गवर्नमेंट थी अपने में, उन्हें वो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी, उन्हें डिक्टेटरशिप चाहिए थी। इसीलिए यहाँ पे हेडिंग है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the separatist league on the pattern of Bolshevik Russian revolution in Russia. Soviet of workers and sailors were established in many cities. The political atmosphere in Berlin was changed with demands of Soviet style of government. अब यहाँ पे कैसी डिमांड होने लगी? ऐसी गवर्नमेंट की जो रशिया में थी। मतलब जर्मनी को भी वैसी गवर्नमेंट चाहिए थी जैसी गवर्नमेंट रशिया में थी, और इसीलिए यहाँ पे एक नया ग्रुप बना जिसको हमने बोला सेपरेटिस्ट लीग। ऑब्वियसली सेपरेटिस्ट लीग को जो गवर्नमेंट चाहिए थी वो वीमर गवर्नमेंट तो नहीं थी। तो अब वीमर गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड कैथोलिक्स के साथ मतलब वो कह सकते हैं मर्ज हुए तीनों ग्रुप एक साथ, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, कैथोलिक्स और वीमर, चारों ग्रुप मर्ज हुए। क्यों हुए? क्योंकि ये चारों एक दूसरे के सपोर्टर थे, और इन लोगों ने इस सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट की जो डिमांड थी उसको क्रश कर दिया। कैसे क्रश किया? ऑर्गेनाइजिंग फॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्री कॉर्प्स। तो उन्होंने फ्री कॉर्प्स के अंदर जो था, ये एक मिलिट्री, हम इसको कह सकते हैं, ये वॉर का नाम है। इस वॉर के अंदर वीमर रिपब्लिक ने पॉलिटिकली जितने भी अपराइजिंग रिवोल्ट थे उनको क्रश कर दिया। अब आप देखो कितनी अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ,
हमारे सारे रिसोर्सेज चले गए जर्मनी के, लोगों को डिक्टेटरशिप चाहिए, है वहाँ पे डेमोक्रेसी। इतनी सब इंस्टेबिलिटी की वजह से ही तो हिटलर राइज हुआ था। हिटलर राइज होने का बेसिकली उसका कारण था कि सोशल इकोनॉमिकल डिप्रेशन की वजह से जो था हिटलर राइज हुआ था। Political radicalism was on heightened by the economic crisis of 1923। तो पॉलिटिकल क्राइसिस तो था ही, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म भी था, मतलब पॉलिटिक्स को जल्द से जल्द हटा देना था कि डेमोक्रेसी को हटाना है। इस सब में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो वीमर रिपब्लिक इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाई थी। जर्मनी ने जो वॉर बेसिकली लड़ी थी वो लोन्स पे लड़ी थी। अब वो लोन पे बैक तो करना था, अब वो लोन इन्होंने गोल्ड के रूप में पे बैक किया, लेकिन वो लोन इतना बड़ा था कि जर्मनी उतने बड़े लोन को गोल्ड से पे बैक नहीं कर पा रही थी। इसलिए 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया कि अब हम कोई भी वॉर कंपनसेशन या गोल्ड दूसरी कंट्रीज को सप्लाई नहीं करेंगे। इसकी वजह से फ्रांस ने क्या किया, एक और इंडस्ट्रियल एरिया जिसको रू कहते हैं वहाँ पे, उसका जो कोल था उन्होंने वो हथियार लिया कि ठीक है अगर आपको गोल्ड नहीं देना है तो हम कोल ले लेते हैं। जर्मनी retaliated with the passive resistance printing paper currency recklessly। तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस तो था ही, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। जब सारे रिसोर्सेज देश के बाहर ही चले गए तो देश में क्या रहा। यहाँ पे वीमर रिपब्लिक की सबसे बड़ी गलती थी कि वहाँ की जो करेंसी थी मार्क, उन्होंने उसे प्रिंट करना शुरू कर दिया एक लार्ज स्केल पर। मतलब जो 10 रुपए के नोट पहले 10 ही प्रिंट हुए थे अब 100 प्रिंट होने लग गए। तो इतने ज्यादा उन लोगों ने पैसे प्रिंट करने शुरू कर दिए कि मार्क जो वहाँ की वैल्यू थी, मार्क करेंसी का नाम है, वो यूएस डॉलर के इक्वल नहीं रह पाई। उसकी जो वैल्यू थी वो यूएस डॉलर से बहुत नीचे गिर गई क्योंकि रेकलेसली ये प्रिंट हुए जा रही थी और इसलिए इसकी वैल्यू नीचे गिर गई। जैसे कि इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि 10 रुपए का नोट सबके पास एक है, इसका मतलब 10 रुपए की वैल्यू है। अगर वही 10 रुपए का नोट सबके पास 100 है तो 10 रुपए की वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह पहले के जमाने में हमारे देश में पैसों की बहुत वैल्यू थी, मैं रुपए नहीं बोल रही हूँ, पैसों की बहुत वैल्यू थी। लेकिन धीरे धीरे पैसों की वैल्यू गिरी। क्यों गिरी? क्योंकि उसके ऊपर की वैल्यू रुपीज की करेंसी आ गई। उसी तरह मार्क की वैल्यू थी पर मार्क इतने बनने लगे कि अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। तो यूएस डॉलर के हिसाब से मार्क की वैल्यू पहले 24,000 हुई, फिर जुलाई में 3,53,000 हो गई, फिर अगस्त में 46,21,000 हो गई और उसके बाद ये वैल्यू ट्रिलियंस में गिर गई। तो इसका एक जोक बनता है बेसिकली कि अब जर्मनी में एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को कार्ट भर के, कार्ट मतलब एक बुलक कार्ट पे अपने मार्क यानी अपने पैसे लेके जाने पड़ते थे क्योंकि वहां पे अब इतने सारे पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। Eventually, American intervened and bladed Germany out with the crisis, introducing Davis Plan। So अब अमेरिका ने देखा कि ये बहुत ज्यादा मतलब एट्रोसिटी हो रही है जैसे जर्मनी में कि वहाँ पे कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। अब जब आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पहले जो चीज 10 रुपए में मिलती थी अब वो चीज 1000 रुपए में बिकेगी, तो कितना अंतर हो गया। ऐसे ही जब प्राइसेस बहुत तेजी से राइज करते हैं तो अब इस क्राइसिस से जर्मनी को बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, डेविस प्लान, जिसके तहत उसने जर्मनी को एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, द ईयर बिटवीन 1924 to 1928 सॉ सम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों आई? क्योंकि डेविस प्लान ने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि ये जो स्टेबिलिटी थी इट वाज बिल्ट ऑन सैंड, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी थी क्योंकि यूएसए में भी अब इकोनॉमिकल क्राइसिस आने वाला था। यूएसए अलाइड पावर था, वो तो जीत गया था तो ऑब्वियसली उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, फिर उसके पास कैसे इकोनॉमिकल क्राइसिस आए बताते हैं। जैसे कि लेट मी शो यू हियर, जस्ट अ मिनट। जब
अमेरिका जीत गया तो उसने कई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की, और उसने इतनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश की कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया। यानी अगर हमें 50 पैकेट्स ब्रेड के चाहिए और हमने 1 लाख पैकेट ब्रेड के बना लिए हैं, तो इतने ब्रेड कैसे खत्म होंगे? हमने मान लीजिए कुछ एक्सपोर्ट कर दिया, कुछ हमने अपने घर पे यूज कर लिया, और कुछ हमने स्टोर में रख दिया कि चलो आगे के लिए हम लोग स्टोर करते हैं। तब भी 1000 पैकेट्स ऑफ ब्रेड अगर हमें 10 ही चाहिए तो इतने यूज नहीं हो सकते हैं। तो अगर पहले से हमारे पास प्रोडक्ट रखा हुआ है तो नई प्रोडक्शन तो नहीं होगी, तो नई इंडस्ट्रीज भी नहीं बनेंगी। इसलिए ओवर प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे लॉस हुआ। जितने भी वहाँ के वर्कर्स थे अब उनको निकाल दिया काम से। क्यों? कि अब जब पहले से ही ब्रेड बनी है, पहले से ही प्रोडक्ट बना हुआ है, तो आप लोग और क्या बनाओगे? तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यूएसए ने कहा कि अब हमारी कंट्री में भी इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया, इसलिए अब हम जर्मनी को मदद नहीं कर सकते। और ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ये बेसिकली उन इंडस्ट्रीज का नाम है। उस वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड। इसका मतलब ये है कि जितनी इंडस्ट्री थी वो तुरंत बंद हो गई, क्योंकि इतना ओवर प्रोडक्शन हो गया था, जिसकी वजह से अब सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट हुई तो उसके बाद इंडस्ट्रीज बंद हुई तो पीजेंट्री वर्क नहीं चला। लेकिन इससे दिक्कत क्या आई? इससे ये दिक्कत आई कि जो वहाँ के स्टॉक मार्केट हम लोग जिसे बोलते हैं, उसके प्राइसेस बहुत जल्दी गिरे, और इस प्राइसेस के गिरने की डर की वजह से लोगों ने 24 अक्टूबर को ही 13 ट्रिलियन शेयर्स बेच दिए। एक दिन में 13 ट्रिलियन शेयर्स जो थे वो बिक गए, क्योंकि अब वहां पर इतनी ज्यादा दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी